Video. Today I am going to discuss about the numericals based on Kirchhoff's law. कल की वीडियो में हमने बताया था Kirchhoff's law क्या है, and actually in the Kirchhoff's law there are two laws. One is KCL, which is called Kirchhoff's current law, and second one is KVL, which is called Kirchhoff's voltage law. So today I am going to discuss some numerical problem based on these KCL and KVL. Suppose I am taking the first example, this one here, and in this first question, find the value of I. It means in this circuit, your aim is to find the value of current I. And here we apply the KCL, Kirchhoff's current law. और ये मालूम है किरचॉफ्स करंट लॉ में क्या था, किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में किसी जंक्शन पॉइंट पे टोटल करंट एंटरिंग एट दैट पॉइंट इज इक्वल टू टोटल करंट लीविंग एट दैट पॉइंट. किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट में जंक्शन पॉइंट पर जितनी करंट आएगी उतनी ही करंट वहां से बाहर जाएगी. इसका मतलब चार्ज का कोई भी स्टोरेज वहां पे नहीं होता. नाउ यू सी इन दिस one is circuit here, and first you see when we apply the KCL, Kirchhoff's current law, then how many junction point in this one here? So junction point is, first junction point this one, this one, this one, this one. It means here we apply the Kirchhoff's current law at this junction point. And now you see for this junction point, what is current coming towards it? 20 ampere. इसका मतलब यहां से जो बाहर लीक करेगी करंट, उनका भी सम कितना होना चाहिए? 20 एम्पियर. तो सपोज दिस करंट इज गिवन 12 एम्पियर, सो दिस करंट शुड बी हाउ मच हियर? 8 एम्पियर. अब हम इस जंक्शन पे पहुंच गए. अब इस जंक्शन पे कितनी करंट एंटर कर रही है? 8 एम्पियर. तो यहां से जो करंट बाहर निकलेगी उनका भी सम कितना होना चाहिए? 8 एम्पियर. तो सपोज दिस करंट इज गिवन 3 एम्पियर, so this current also how much here? 5 ampere. It means KCL is applicable properly at this point and at this point. Now you come at this point. What is the current entering at this point? 12 ampere करंट भी इधर आ रही है और 3 एम्पियर करंट भी इधर आ रही है. दोनों करंट एंटर कर रही है इस पॉइंट पे. इसका मतलब इस पॉइंट पे जो करंट बाहर जाएगी, लीक करेगी, वो किसके बराबर होगी? 12 plus 3 is 15 ampere. Now for this junction point, the current entering at this point 15 ampere ये करंट आ रही है और 3 एम्पियर ये करंट आ रही है. इसका मतलब टोटल करंट एंटरिंग एट दिस जंक्शन इज 18 एम्पियर. इसका मतलब यहां से जो करंट बाहर जाएगी वो भी कितनी होगी? 18 एम्पियर. तो यहां पे आंसर हो गया, दिस करंट I will equal to 18 एम्पियर. I hope maybe this one is correct. One more example I am taking. Now you see in this case, how many junction? Here, here, here. All these are the junction point where the two or more than two current are entering. Now you apply at this junction point, total current entering at this point 2 ampere, 4 ampere. It means total current entering at this point is 6 ampere. तो यहां से कितनी करंट बाहर जाएगी? 6 एम्पियर. एक की और इनके सब के बराबर है. अब इस पॉइंट पे आ गए. इस पॉइंट पे कितनी करंट यहां एंटर कर रही है? 6 एम्पियर. तो यहां से जो करंट बाहर भी निकलेगी उसका भी सम कितना होना चाहिए? 6 एम्पियर. तो अगर ये करंट 1 एम्पियर है तो ये करंट कितनी होगी? 5 एम्पियर. ये दिया है. All this thing is given. And आप यहां चेक कर रहे हैं ये सही है या नहीं. And now at this junction point, what current is entering? आने वाली करंट है 5 एम्पियर. और इस 5 एम्पियर में से यहां से जा कितनी रही है बाहर? 2 एम्पियर. इसका मतलब यहां पे ये करंट होना चाहिए, इधर जो जाएगी वो कितना होना चाहिए? 3 एम्पियर. लेकिन आपको जो एरो दिया है वो ऊपर की तरफ दिया है, जबकि आपको मालूम है ये एरो जब नीचे आएगी तो 3 एम्पियर होगी, लेकिन पूछा जाने वाला करंट का एरो ऊपर है. इसका मतलब ये I किसके बराबर होगा? -3 एम्पियर. अब आप कर सकते हैं कि दिस 2 एम्पियर, this one and this one is
5 एम्पियर एंड -3 एम्पियर, तो 5 plus minus 3 is equal to 2 ampere, which is leaving here. Or in same way you can say here, this current downward should be 3 ampere. हमसे जो पूछा जा रहा है करंट, उसका एरो क्योंकि ऊपर दिया है, इसलिए उसका करंट का डायरेक्शन या करंट की वैल्यू हम क्या ले लेंगे, जस्ट अपोजिट इज -3 ampere. So in this way we can find, or in this way we can apply the word here KCL, Kirchhoff's current law. Now I'm going to discuss the second problem, but in this problem I'm going to use Kirchhoff's second law. It means in this circuit which is given here, using Kirchhoff's second law, find the current I flowing through the 4 ohm resistor. It means your aim is to find how much current is flowing in this 4 ohm resistor. And using Kirchhoff's second law, यहाँ Kirchhoff का second law यूज करने में तो आप क्या यूज करेंगे, Kirchhoff's voltage law, which is also called Kirchhoff's voltage law. और हमने कल बताया था कि Kirchhoff's second law और Kirchhoff's voltage law, जिसको हम लूप रूल भी करते हैं, मेश रूल भी करते हैं, is always applied for a closed loop. और जैसा बताए थे कि आप क्लोज्ड लूप में एक डायरेक्शन में चलेंगे, अगर आपका डायरेक्शन जो चलने का है और करंट का डायरेक्शन अगर दोनों सेम रहेगा तो उस करंट को आप माइनस साइन के साथ लेंगे, और अगर रास्ते में कोई सेल पड़ता है तो आप देखिएगा उस सेल के हम नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव जा रहे हैं या पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहे हैं। अगर नेगेटिव से पॉजिटिव जाएंगे तो उस सेल की पॉजिटिव वैल्यू लीजिएगा, और अगर पॉजिटिव से नेगेटिव में जा रहे हैं तो सेल की नेगेटिव वैल्यू आप ये मत लीजिए, जो कि हम कल बता चुके थे। अब यहां पे देखिए, व्हाट इज द क्लोज्ड लूप, इस पूरे सर्किट में ये 5 एम्पियर की करंट, and apply the Kirchhoff's first law, then 3 ampere current is passing through it and 2 ampere is passing through it. Suppose I ampere current is passing through this 4 ohm resistor and our aim is to find the value of I. तो हम क्लोज पाथ ले रहे हैं फॉर क्लोज्ड लूप, क्योंकि यहाँ एक ही क्लोज लूप है और इसी में हमें किरचॉफ का सेकंड लॉ लगाना है। फॉर क्लोज्ड लूप A B C A, A B C A, आपने ये डायरेक्शन लिया अपने चलने का, ये हम इस तरह से इस लूप में मूव करेंगे ऐसे, इसका मतलब हम चल रहे हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन। यहाँ एक चाहे तो आप क्लॉकवाइज एरो बना लें, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है कि हम A B C A ही चलें। You can also move in A C B A, either clockwise or anti-clockwise. It depends on you. Now, suppose I am traversing in this loop in clockwise direction. तो हम पहले कहां से चल रहे हैं, A to B, A to B। तो हमारे चलने का डायरेक्शन इधर और करंट भी 3 एम्पियर इधर है। तो ये 3 एम्पियर करंट 2 ओम रेजिस्टर से जब पास करेगा तो कितना यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा इसके अक्रॉस, तो प्रोडक्ट ऑफ दिस करंट एंड रेजिस्टर, दिस करंट विल टेकन विद व्हाट साइन, क्योंकि हमारे चलने का डायरेक्शन और करंट का डायरेक्शन दोनों एक ही है, तो इसमें क्या लेंगे, -3 × 2। और कल बताए थे कि हम अगर उसी डायरेक्शन में चल रहे हैं जिस डायरेक्शन में करंट चल रही है, तो करंट हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल पे जाता है, इसका मतलब हम जा रहे हैं हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल पे, तो पोटेंशियल का ड्रॉप होगा, और उस पोटेंशियल को ड्रॉप को हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, I × R से, और ये हो गया I 3 एम्पियर, माइनस साइन ये बता रहा है वहां वोल्टेज का क्या हुआ है, ड्रॉप हुआ है। तो 3 × 2 A to B पहुंच गया। फिर आइए B to C, हमारे आने का डायरेक्शन है B to C, और करंट भी आ रही है B से C, तो इस करंट I को भी किस साइन के साथ लेंगे, -I × 4। मतलब करंट जो रजिस्टर से पास करेगा तो उस करंट और रजिस्टर का जो प्रोडक्ट होगा वही होगा पोटेंशियल डिफरेंस, और ये पोटेंशियल डिफरेंस का या तो राइज होगा या तो फॉल होगा। राइज फॉल का मतलब या तो ड्रॉप होगा पोटेंशियल का या तो गेन होगा। -I × 4। अब कहां पहुंचे,
ए टू बी हो गया, बी टू सी हो गया और सी टू ए। हम आ रहे हैं सी से ए की तरफ, करंट आ रही है ए से सी की तरफ। इसका मतलब इस लूप में हमारा डायरेक्शन और इस करंट का डायरेक्शन दोनों क्या है, अपोजिट है। तो इस करंट को हम किस साइन के साथ लेंगे, पॉजिटिव। तो +2 इंटू ये करंट किसमें फ्लो कर रही है, 6 ओम रजिस्टर। बाय ओम्स लॉ पोटेंशियल का गेन कितना होगा, 2 और यहां पे कोई सेल नहीं है इसलिए सेल की बात ही नहीं कर रही है। तो देयर सम शुड बी इक्वल टू 0। तो फ्रॉम हियर यू कैन से -6 -4i +12 is equal to 0. Or you can say -4i 12 or -6 +6 is equal to 0. Or we can say here -4i is equal to -6. -6 cancel by minus. So I is equal to 6/4 is equal to 1.5. It means the current passing through this 4 ohm resistor is how much here? 1.5 ampere. And also, you see here, if this current is coming with what sign? Positive sign. इसका मतलब इसमें जो ये करंट का डायरेक्शन है वो सही है, वो इसी डायरेक्शन में होगा। अगर ये नेगेटिव साइन के साथ आ जाता है ये करंट, तब आप कहते हैं कि करंट नीचे की तरफ ना होकर के किधर है, इसमें ऊपर की तरफ होता है। Now we take the another question based on the KVL। और याद रखिए ये सब क्वेश्चन जो मैं दे रहा हूं ये सब बहुत आसान है, इस क्वेश्चन में कोई कठिन नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है। Now you see in this one here, find the current in each resistance. Find the current in each resistance. It means find the current in 1 ohm, 2 ohm and 6 ohm. And now you see here, this one is given circuit diagram. There are two cells, one cell having EMF 2 volt, this one is 3 volt, and these three resistors 1 ohm, 2 ohm and 6 ohm, ये सब इस सर्किट के हिसाब से करेक्ट है। तो फर्स्ट वी विल take the current given by this battery or cell. Suppose the current due to this 2 volt cell is here I1 ampere and this one is here I2, and suppose both cell which is giving the current I1 and I2 meet at the point B, then according to KCL, Kirchhoff's current law, total current coming toward this point B, I1 plus I2. So leaving at this point means यहाँ पे करंट कितना हो जाएगा, I1 plus I2. And now this I1 plus I2 again यहां से कितनी करंट गई, I1 एम्पियर। तो यहां पे ब्रेक होकर के फिर कितनी करंट यहां से वापस आएगी, I1 एम्पियर। तो यहां से I1 एम्पियर इधर चला है एंड इसमें कितनी करंट वापस चली जाएगी, यहां से कितनी करंट निकली थी, I2, तो यहां से वापस जाएगी I2 करंट, वापस इसमें आ गई। तो सबसे पहले करंट का डिस्ट्रीब्यूशन समझ लीजिए कि हर ब्रांच पे कैसे करंट को लेना है और हर एक जंक्शन पॉइंट पे हमेशा ये केसीएल को फॉलो करेगा, किरचॉफ्स करंट लॉ को। एंड नाउ यू सी एट दिस पॉइंट total current coming I1 plus I2, leaving I1 plus I2. At this point total current coming I1 plus I2, leaving I1 plus I2. So at this junction point or at this junction point it fulfills the KCL। और ये जो हमने करंट का डायरेक्शन लिया है कि यहाँ पे इससे I1 इससे I2, ये जरूरी नहीं है, आप करंट का कुछ भी डायरेक्शन ले लीजिए। मान लीजिए इससे हम करंट ले लिए I1 जा रहा है, इससे मान लो करंट है I1 और ए करंट हम कह रहे हैं I2 इधर आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर सॉल्व करने के बाद करंट की वैल्यू नेगेटिव आ जाए तो इसका मतलब जो डायरेक्शन हमने लिया है एक्चुअल वो डायरेक्शन ना हो कि जस्ट उसके उल्टा है।
जैसे हम I2 को सॉल्व करें, हमने I2 को लिया है ऊपर, और I2 अगर पॉजिटिव साइन के साथ आएगा तब तो ये डायरेक्शन सही है, और अगर मान लेते हैं I2 नेगेटिव साइन के साथ आ गया तो इसका मतलब ये I2 ऊपर न होकर कहां है, नीचे। तो इसमें करंट का आप डायरेक्शन कुछ भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आगे भी हम और क्वेश्चन दिखाएंगे आपको। तो now you see when you will apply the KVL, Kirchhoff's voltage law, तो Kirchhoff's voltage law is always applied for a closed loop। तो यहाँ पे कितने क्लोज लूप हैं? एक क्लोज लूप ये हो गया A B E F A, दूसरा क्लोज लूप B C D E B, और I1 I2 अगर पता चल जाएगा आपको तो I1 plus I2 पॉसिबल कर जाओ। तो पॉसिबल फाइंड हियर for closed loop, what closed loop you are taking? A B E F and A। इसका मतलब इस क्लोज लूप में आपके चलने का डायरेक्शन ये है, A से B, फिर B से E, E से F, F से A। इसका मतलब आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऐसे चलते हैं। एंड नाउ अब देखिए रास्ते में कौन रेजिस्टेंस पड़ेगा इस लूप में, और उस रेजिस्टेंस में करंट कितनी जा रही है, और उस करंट और रेजिस्टेंस का जो प्रोडक्ट आएगा उतने का ही वोल्टेज या तो ड्रॉप होगा या तो गेन होगा, जो कि हम निकालते हैं I या तो प्लस साइन के साथ या तो माइनस साइन। अब देखिए हम कहां से चलें, A टू B। A टू B कोई रेजिस्टेंस यहां नहीं है, कोई बात नहीं, यहां पे कोई भी पोटेंशियल का ड्रॉप कुछ नहीं। अब कहां पहुंचे, B टू E। B से E तक आने में हम आ रहे हैं B से E, और करंट भी आ रही है इस 2 ओम में I1 प्लस I2। इसका मतलब हमारा डायरेक्शन और इस करंट का डायरेक्शन दोनों सेम है। इसका मतलब ये करंट किस साइन के साथ लेंगे, माइनस, तो माइनस I1 प्लस I2 इंटू 2 ओम, ये हो गया। फिर कहां पहुंचे, E टू F। E टू F कोई भी यहां पर रेजिस्टर नहीं है, कोई भी पोटेंशियल का ड्रॉप नहीं। फिर आ गए F टू A। F टू A आने में सबसे पहले हम पास करेंगे किससे, 1 ओम रेजिस्टर से। तो हम देखेंगे इसमें कितने का पोटेंशियल गेन हुआ, फिलहाल हम चल रहे हैं F से A, और करंट भी इस रेजिस्टेंस में है ऊपर की तरफ। इसका मतलब हमारा डायरेक्शन और करंट का डायरेक्शन दोनों क्या है, सेम। तो दिस करंट विल टेक इट विथ व्हाट साइन, माइनस, माइनस I1 इंटू 1 हो गया। अब हम जा कहां रहे हैं, रास्ते में सेल पड़ा, और सेल के हम नेगेटिव से पॉजिटिव, नेगेटिव को तो लोअर पोटेंशियल से हायर, इसका मतलब हम लोअर से हायर की तरफ जा रहे हैं। इसकी कौन सी वैल्यू लेंगे, प्लस 2 वोल्ट, तो प्लस 2 इज शुड बी, और इसको हम सॉल्व करें, -2I1 -2I2 -I1 प्लस 2 इज इक्वल टू, ये हम कर सकते हैं -2I1 और -I1, फिर हो गया -3I1 -2I2 प्लस 2 इज इक्वल टू 0, या इसको हम लिख सकते हैं -3I1 -2I2 इज इक्वल टू -2। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर, ये हो गया हमारे लिए एक इक्वेशन फ्रॉम दिस लूप। Similarly, our aim is to find for another loop. Now, in the same way, we will take for loop, और लूप हमेशा क्लोज रहेगा क्योंकि केवीएल लॉ हमेशा क्लोज लूप के लिए लगता है। फॉर लूप बी सी डी ई एंड बी। अब ये बी सी डी ई,
आपने इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ले लिया, कोई बात नहीं, इसको चाहे क्लॉकवाइज ले या एंटी क्लॉकवाइज, कोई फर्क नहीं। अब देखिए, अब चलिए बी टू सी कोई रेजिस्टेंस नहीं आया, इसलिए कोई पोटेंशियल का ड्रॉप यहां होने की जरूरत नहीं है। अब आए सी टू डी, सी टू डी आप चल रहे, सी से डी तक जाने में हमको रास्ते में पड़ गया ये सेल, और जिसके हम कहां जा रहे हैं, सी से डी जाएंगे तो पॉजिटिव से नेगेटिव आएंगे, इसका मतलब ये वोल्टेज किसके साथ रहेगा, -3। अब फिर हम इधर आ रहे हैं और करंट जो जा रही है 6 ओम में, वो ऊपर जा रही है, तो हमारा डायरेक्शन और एक करंट का डायरेक्शन दोनों अपोजिट है, तो इस करंट I2 को हम किस साइन के साथ लेंगे, प्लस I2 इंटू 6 ओम, क्योंकि इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल का गेन होगा वो होगा I इंटू R। फिर D टू E, D टू E कुछ नहीं है, कोई रेजिस्टेंस नहीं, कोई ड्रॉप नहीं। फिर आ गए हम E टू B, E टू B, E टू B मतलब हम जा रहे हैं ऊपर और करंट आ रही है इसमें नीचे, इसका मतलब हमारा डायरेक्शन और करंट का डायरेक्शन जो इस 2 ओम में आ रहा है दोनों अपोजिट है, इसलिए इस करंट को किस साइन के साथ लेंगे, प्लस, तो प्लस I1 प्लस I2 इंटू 2, दिस शुड बी इक्वल टू 0। तो फ्रॉम हियर इसको फिर से अरेंज कर लें, तो -3 प्लस 6I2 प्लस 2I1 प्लस 2I2 इक्वल टू 3। अब you can say 2I1 6I2 plus 2I2 plus 8I2, 6I2 plus 2I2 plus 8I2, इस -3 को इधर ट्रांसपोज करिए, इज इक्वल टू 3। ये मान लीजिए इक्वेशन। अब हमारे पास दो इक्वेशन है, पहला इक्वेशन ये है और दूसरा इक्वेशन ये है। इन दोनों इक्वेशनों को सॉल्व करके हमको क्या करना है, I1 और I2 की वैल्यू निकालनी है। इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करने के लिए क्या करें, यहां है 2I1, यहां है 3I1, so if we multiply by the 3 here and here we multiply by the 2, then this will come minus 6I1 minus 6I1 minus 4I2 is equal to minus 4. Suppose this is equation number 3, और इसमें कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से, तो ये हो जाएगा 6I1 प्लस 24I2 इज इक्वल टू 9। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 4। अब इन दोनों इक्वेशनों को सॉल्व करते हैं। यहां लिख लीजिए -6I1 minus 4I2 is equal to minus। अब क्या करें, इसको ऐड कर दें, तभी -6I1 plus 6I1 इसको ऐड कर दें, तो यहां क्या आ जाएगा, 24I2 minus 4I2, ये आ जाएगा 20I2 is equal to 9 minus 4, ये हो जाएगा 5। इसका मतलब I2 is equal to 5 by 20। 5 by 20 मतलब 1 by 4, 1 by 4 मतलब कितना हो गया, 0.5। इसका मतलब ये करंट I2 कितना हो गया, 0.25 एम्पियर। और ये करंट I2 देखिए पॉजिटिव के साथ आ रहा है, इसका मतलब ये डायरेक्शन सही है जो आपने लिया है, ये इसी डायरेक्शन में रहेगा। एंड नाउ यू पुट द वैल्यू ऑफ I2 in any equation 1 or 2। so suppose we put the equation number this one here। now put the value of I2 here,
So we'll get here 6I1 plus 24 and I2. So I2 you can say into I2 is 5 by 20. 5 by 20, or you can say 0.25. 0.25 is equal to 9. So from here you can say 6I1 plus, when you will multiply here 24 into 25, then you will get 25. So 24 into 0.25, this will come 6 is equal to 9. And simply you can say 6I1 is equal to 9 minus 6. 9 minus 6 means 3. So in this way you can say I1 is equal to 3 by 6 is equal to 0.5. And now you see this I1 is also coming with positive sign. It means this direction जो कि आपने लिया वो भी सही है. तो ये I1 करंट कितना आ गया? This I1 current is coming 0.5 ampere. I2 current आ गई 0.25 ampere. What is the current in this 2 ohm resistor? I1 plus I2. I1 plus I2 means 0.5 plus 0.25. So this becomes how much here? This becomes 0.75 ampere. It means in this way you can write your answer like this one. Current in 1 ohm resistor 0.5 ampere. Current in 6 ohm resistor I2 0.25 ampere. And current in this 2 ohm resistor is 0.75 ampere. One more numerical I would like to discuss here. एक इस न्यूमेरिकल को देखिए. यहाँ पे 2 सेल लगे हैं. एक सेल ये 4 वोल्ट और यहाँ पर रेजिस्टेंस ये 4 ओम. ये है 10 वोल्ट, यहाँ है 6 ओम और ये रेजिस्टेंस है 2 ओम. और ये बना. Our aim is to find or calculate the current in each branch. हर ब्रांच में कितनी करंट इसमें जा रही है. मैं फिर बता दे रहा हूं, किसी सेल से आप करंट का डायरेक्शन कुछ भी ले लीजिए, उससे कोई मतलब नहीं है. सॉल्व करने के बाद आपको खुद पता चल जाएगा कि जो डायरेक्शन आपने लिया है वो सही है कि नहीं. अगर जैसे आपने किसी सेल से करंट का डायरेक्शन ले लिया और सॉल्व किया, उस करंट की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, इसका मतलब आपने उस सेल से जिस करंट का डायरेक्शन लिया वो सही डायरेक्शन है. और अगर मान लीजिए वही करंट सॉल्व करने पे नेगेटिव आ रही है, जिसका मतलब आपने जो डायरेक्शन लिया है एक्चुअल डायरेक्शन वो ना हो कि जस्ट उसका उल्टा है, अपोजिट. जैसे हमने यहां मान लिया, हमको नहीं मालूम है, तो हमने मान लीजिए 4 वोल्ट से करंट आ रही है I1, हमने मान लिया. और मान लीजिए यहां 10 वोल्ट से I2. हो सकता है आपके दिमाग में ये हो कि सर निगेटिव टर्मिनल से करंट को बाहर क्यों निकाल रहे हैं? अरे भैया गलत होगा ये I2, तो सॉल्व करने पे I2 निगेटिव आ जाएगा तो अपने आप ही अंदर की तरफ आने लगेगा. इसलिए आप इससे चिंता मत करिए कि इस करंट का डायरेक्शन हम पॉजिटिव से ही निकालें. आप करंट का डायरेक्शन कुछ भी ले लीजिए, बैटरी से कोई मतलब नहीं. अब देखिए इससे करंट आ रही है I1 आपने लिया, यहां से ले रहे हैं I2, तो इसका मतलब इसमें करंट कितनी आ जाएगी? हाउ मच? I1 प्लस I2. इसका मतलब इसमें करंट हो जाएगी I1 प्लस I2. यहां भी करंट हो जाएगी I1 प्लस I2. और केसीएल को दिमाग में रखिएगा, किरचॉफ करंट लॉ को जो हर जंक्शन पे लगता चला जाएगा. अब I1 प्लस I2 में से यहां से I2 करंट आपने बाहर निकाला है, तो इसका मतलब यहां लौट के I2 करंट वापस आएगी. यहां आ रही थी I1 प्लस I2, इधर चली गई I2, तो यहां बचा कितना करंट? I1. वो I1 यहां पे वापस आ जाएगी, जो कि इसके पॉजिटिव टर्मिनल से निकली थी, वो करंट I1 यहां वापस आ गई. और इस तरह से आपने करंट का डिस्ट्रीब्यूशन कर लिया. मैं फिर बताना चाह रहा हूं कि इन सेल से आप करंट का डायरेक्शन जिधर चाहिए उधर ले लीजिए, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली. क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अपने आप आपको पता चल जाएगा कि हमने जो डायरेक्शन लिया है सही है कि नहीं. जैसे
हमने अगर इसको सॉल्व किया, I1 पॉजिटिव साइन के साथ आ रहा है, इसका मतलब हमने ये डायरेक्शन जो करंट का लिया वो सही है, इसी डायरेक्शन में करंट ये दे रहा है। और मान लो हमने I2 को सॉल्व किया, ये निगेटिव आ रहा है, इसका मतलब हमने ये डायरेक्शन जो लिया है वास्तव में ये डायरेक्शन हो कि ये इस डायरेक्शन जो इसके अपोजिट है। तो फर्स्ट अप्लाई द केवीएल किरचॉफ वोल्टेज लॉ फॉर लूप A B C D A, for loop A B C D A. Suppose I am going to apply the Kirchhoff voltage law or second law for this loop A B C D A. It means you are going in clockwise direction. ठीक है। अब देखिए इस लूप में आप चल रहे हैं A से B, लेकिन याद रखिएगा हमेशा ये देखिएगा कि जिस लूप में आप चल रहे हैं उसमें सेल कौन सा है और कोई जो रजिस्टर है उस रजिस्टर में करंट कितनी जा रही है। तो हमेशा उस रजिस्टर में जो वोल्टेज का ड्रॉप या गेन होगा हमेशा I इंटू R के बराबर होगा। अब देखिए पढ़े गए हम A टू B, अब आइए A टू B, ये हमारे चलने का डायरेक्शन है इस लूप में। A से B तक चलने में सबसे पहले हमको ये बैटरी मिल गई और इस बैटरी के हम जा रहे हैं पॉजिटिव से निगेटिव, इसका मतलब हायर से लोअर, तो यहाँ पे इसने वोल्टेज का क्या होगा ड्रॉप होगा, तो ये हो जाएगा -4। अब हम जा रहे हैं A टू B, करंट आ रही है इधर, इसका मतलब हमारा डायरेक्शन और करंट का डायरेक्शन दोनों अपोजिट है, इसलिए इस करंट I1 को किस साइन के साथ लेंगे पॉजिटिव, तो प्लस I1 इंटू 4। यहां तक पहुंच गए A टू B। B टू C कोई रजिस्टर नहीं, कोई ड्रॉप गेन नहीं। C टू D, अब यहां आइए C टू D, हम C से D तक आ रहे हैं तो हमारे चलने का डायरेक्शन और इस रेजिस्टेंस में जो करंट का डायरेक्शन दोनों सेम है, इसका मतलब इस करंट I2 को किस साइन के साथ लेंगे माइनस, तो माइनस I2 इंटू 6, इतने वोल्टेज का क्या हो रहा है ड्रॉप हो रहा होगा इधर। और फिर हम जा रहे हैं किधर प्लस से माइनस की तरफ, प्लस से माइनस की तरफ क्या हो गया इसका मतलब नेगेटिव, इसका मतलब वोल्टेज का हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, तो यहां लिखेंगे -10, दिस शुड बी इक्वल टू 0। सो फ्रॉम हियर यू कैन से इसको अरेंज कर लें, -4 प्लस 4I1 -6I2 -10 इज इक्वल टू 0। या हम कह सकते हैं कि 4I1 -6I2 और -10 एंड -4, ये हो जाएगा -14 इक्वल टू 0। और सिंपली वी कैन से हियर 4I1 -6I2 इज इक्वल टू 14। सपोज दिस इक्वेशन नंबर 1। अब एक लीनियर इक्वेशन हमको मिल गया पहले लूप से, उसी तरह से अब एक लीनियर इक्वेशन हम बनाएंगे दूसरे लूप के लिए, इसलिए हम दूसरा लूप ले लिए फॉर लूप DCFED। फिर मैं बता रहा हूं इसके ऑर्डर आप कुछ भी ले सकते हैं, चाहे क्लॉकवाइज चाहे एंटी क्लॉकवाइज, उससे रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो फॉर लूप DCFED, अब देखिए D टू C, आइए व्हेन वी मूव फ्रॉम D टू C, ये सेल पड़ा, आप जा रहे हैं नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो इसकी वैल्यू लिखेंगे +10। अब फिर हम जा रहे हैं D टू C, तो ये जो करंट है ये C टू D जा रहा है, हम जा रहे हैं D टू C, तो करंट का डायरेक्शन हमारे डायरेक्शन के अपोजिट है, कि ये प्लस साइन के साथ प्लस I2 इंटू किस में जा रहा है ये 6 ओम, तो D टू C हो गया। अब C टू F कोई रेजिस्टेंस नहीं लगा यहाँ पे, यहाँ पे कोई पोटेंशियल का ड्रॉप गेन नहीं हुआ। F टू E, अब देखिए F टू E आएंगे तो हमारे चलने का डायरेक्शन है F से E और करंट आ रही है E से F, इसका मतलब हमारा डायरेक्शन और करंट का डायरेक्शन दोनों अपोजिट है, तो ये किस करंट के साइन के साथ पॉजिटिव, प्लस I1 प्लस I2 इंटू 2। अब यहाँ कोई E टू D कोई रेजिस्टेंस नहीं है, दिस शुड बी इक्वल टू 0। एंड फ्रॉम हियर वी कैन से हियर 10 प्लस 6I2
plus 2i1 plus 2i2 is equal to 0. And we can say here 2i1 plus 8i2 is equal to, इस 10 को इधर ट्रांसफर कर दिए -10, या इसको 2 से डिवाइड भी कर दें तब भी आ जाएगा। और वी कैन राइट हियर i1 प्लस 4i2 is equal to -5. Suppose this is equation number 2. अब हमारे पास दो इक्वेशन है, एक पहला इक्वेशन ये है और दूसरा इक्वेशन ये है। इन्हीं दोनों इक्वेशनों को सॉल्व करके हमको i1 और i2 की वैल्यू निकालनी है। इन इक्वेशनों को सॉल्व कर लिया जाए। पहला इक्वेशन क्या था, मान लेते हैं इस इक्वेशन, पहला इक्वेशन है 4i1 माइनस 6i2 is equal to 14. This इक्वेशन नंबर 1। और इक्वेशन नंबर 2 जहां पे i1 प्लस 4i2 इज इक्वल टू -5, तो यहां पे अगर हम 4 से मल्टीप्लाई कर दें, यहां पे इस इक्वेशन 2 में 4 से मल्टीप्लाई करिए, इसको सॉल्व करने के लिए ये हो जाएगा 4i1 प्लस 16i2 is equal to -20. Suppose this equation number 3rd. And how will get the equation number 3rd? इसमें 4 से हम मल्टीप्लाई किए। अब क्या करें, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। ये हो गया माइनस, यहां हो गया माइनस और यहां हो गया प्लस। एंड 4i1 माइनस 4i1 कैंसिल, तो ये -6i2 माइनस 16i2, ये हो जाएगा -22i2 इस इक्वल टू, ये हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा 14, तो प्लस 20 प्लस 14 ये हो जाएगा 34। इसका मतलब i2 इज इक्वल टू हो गया 34 अपॉन -34/22। इट मीन्स this will comes -17 upon 11 ampere. This current. And now you see this current I2 is coming with what sign? Negative. इसका मतलब ये जो करंट का डायरेक्शन लिए हम I2, ये डायरेक्शन ना होके इसका एक्चुअल डायरेक्शन क्या होगा? इसका एक्चुअल डायरेक्शन ये रहा होगा। और इस एक्चुअल डायरेक्शन को लेंगे तब इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 17/11 एम्पियर। And now when you put the value of I2 in any equation, so suppose this 4i1 minus 6 and you write down I2 minus 17/11 is equal to 40. And you can say here 4i1 minus 6 into -17, so minus plus 17 6 is 102 upon 11 is equal to 40. It means 4i1 is equal to 14 minus 102 upon 11. So here you can solve and find out 4i1 is equal to -102 upon 11. It means 4i1 is equal to 154 minus 102. So you will get how much here? 52 upon 11. It means I1 is equal to I1 is equal to 52 upon how much here? 44. And this I1 is coming with what sign? Positive sign. It means आपने इसका जो डायरेक्शन लिया है वो सही है, इसी डायरेक्शन में होगा। और इस करंट की वैल्यू हो जाएगी कितनी? 52 upon 44. And now in this way you can find
the value of current I1 and I2 here. And now you see 54 upon 44 coming here, and this one is 17 upon 11 is going in this one. So what current is coming this one? By the ACL law, you can find the current I1 plus I2. Or simply you can say I1 plus I2. What is the value of I1 plus I2? So I1 plus I2. It means I1 is how much? 30 by 11. I1 is coming 52 upon 44. 52 upon 44. And I2 is coming minus 17 upon 11. So minus 17 upon 11. And you will get here. How much here? 44. This will come here. 52. So now I1 plus I2 you will take 52 upon 44 minus 17 upon 11. When you will solve it, then it comes minus 16 upon 44 ampere. Again, this current I1 plus I2 is coming minus. It means the direction which you have taken downward, actually this direction I1 plus I2 will come here, just opposite to it here, like this one. Means this actual direction of this current is like this, in this way. And in this way you will get the direction of the current. So simply you can take any direction, it's no problem. You can take any direction of the current, but after solving you see here that current is coming positive or negative. And in this way you can find the correct direction of the current. So dear student, you try to solve the rest problem of your book or given exercise here. When you will do the practice, more and more practice, then I think maybe all these questions becomes more and more easy for you. Thank you.